Hello friends, welcome to our YouTube channel. I am Arati Patil. Today's our point of discussion is Drug Inspector from the chapter Drug and Cosmetic Act. Before this we have see about the government analyst and the link for that provided to upper side. To be link in the complete chapter, you have to firstly see about the government analyst and then go for the drug inspector. Let's see about the drug inspector. What we have to see about the drug inspector, that is definition, qualification for the post of drug inspector and powers of drug inspector in this part, and in upcoming part of this video we are going to see about duties performed by drug inspector, procedures of drug inspector and report to the government analyst. Drug inspector. See, the central government or state government by notification in the official gazettes appoints inspector having prescribed qualification under section 21 of the act for the specified area. या तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों में से कोई भी एक ऐड निकाल लेगा कि ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसीज है और having prescribed qualification, whatever the qualification is given by the norms of section 21 of the Drug and Cosmetic Act. As per that norms, the vacancies can be filled and the drug inspector can be appointed. For which reason? For the specified area. Why it is specified area? Means the vacancies can be drawn only for the manufacturing of the Schedule C product or Schedule C1 product likewise, since it is mentioned for the specified area only. Again, a person to be appointed as drug inspector should have no financial interest in the import, manufacture or sale of the drug or cosmetic. जो भी person as a drug inspector appoint होगा उसे import, manufacture और sale of drug and cosmetic means इन product के किसी भी procedure में कोई भी financial interest नहीं होना चाहिए, because the person is appointed as a drug inspector is a public servant under section 21 of the Indian Penal Code. As per the section 21 of IPC, the drug inspector is called as public servant. That is important for your MCQs questions also. Next one, qualification for the post of drug inspector. The person who wants to be drug inspector, he or she should be graduate in pharmacy, pharmaceutical science और medicine. या तो ग्रेजुएट होने ही चाहिए या फार्मेसी में या फार्मास्यूटिकल साइंस में या फिर मेडिसिन के डिग्री में, विथ स्पेशलाइजेशन इन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी. वाई क्लिनिकल फार्माकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी? बिकॉज दिस सब्जेक्ट प्रोवाइडेड द बेसिक नॉलेज अबाउट द टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज, अबाउट द बायोलॉजिकल ऐसे प्रोसीजर्स, एंड दैट विल बी हेल्पफुल ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन. सो in any year of their degree courses they should have any one of this subject, clinical pharmacology or microbiology. See, along with the academic qualification, the person who wants to be drug inspector or the person who is appointed as a drug inspector only for inspection of manufacturing of substance स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी, शेड्यूल सी के किसी एग्जाम्पल को या फिर शेड्यूल सी के किसी प्रोडक्ट को ही मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और उसका ही इंस्पेक्शन करने के लिए अगर किसी पर्सन को एज ए ड्रग इंस्पेक्टर अपॉइंट किया जाता है, इन दैट केस दैट पर्सन शुड हैव not less than 18 months of experience in the manufacturing of at least one of the substance specified in Schedule C, or not less than 18 months of experience in testing of at least one of the substance specified in Schedule C in approved laboratory. Make it simple, पर्सन को एज ए ड्रग इंस्पेक्टर अपॉइंट किया है किसके लिए? जो मैन्युफैक्चरिंग एजेंसी या मैन्युफैक्चरिंग फर्म सिर्फ शेड्यूल सी के प्रोडक्ट को ही मैन्युफैक्चर करती है, उसका इंस्पेक्शन करने के लिए एक पर्सन को हमने ड्रग इंस्पेक्टर अपॉइंट करने वाले हैं. उसका एकेडमिक क्वालिफिकेशन दैट विल बी द सफिशिएंट और दैट विल बी गुड. सो इन दैट केस इट इज़ अगेन सी दैट और इट इज़ अगेन ऑब्जर्व दैट दैट पर्सन शुड हैव आइदर experience in the manufacturing or experience in the testing of 18 months in of what of the शेड्यूल सी प्रोडक्ट. शेड्यूल सी के कौन से भी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग का या फिर टेस्टिंग का उस पर्सन को 18 मंथ्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए. अगेन इट इज़ प्रोवाइडेड दैट नॉट लेस देन 3 years एक्सपीरियंस इन द इंस्पेक्शन ऑफ फर्म्स मैन्युफैक्चरिंग एनी ऑफ द सब्सटेंस स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर सर्विस एज द ड्रग इंस्पेक्टर. एक पर्सन पहले से ड्रग इंस्पेक्टर है लेकिन वो स्पेसिफाइड एरिया के वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं. इन दैट केस दैट पर्सन हैविंग 3 years एक्सपीरियंस, इन दैट केस दैट पर्सन उस पर्सन के पास 3 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए इंस्पेक्शन का. कौन से इंस्पेक्शन का? जो फर्म्स शेड्यूल सी के प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करती है. सो दैट इन दिस वे द rule number 1 and 2 or the norms or clause first and second that will be for the fresher one, and the third one that will be provided for the drug inspector which is previously drug inspector and again apply for the
specified area. It is also provided that on which date the chapter 4 of the Drug and C Act takes into effect in the state. जिस डेट पे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का 4 नंबर का चैप्टर कमेंसमेंट में आया है या फिर इफेक्ट में आया है, उस डेट से अगले 4 साल तक जो भी पर्सन एज ए ड्रग इंस्पेक्टर रह चुका है उसका क्वालिफिकेशन, ट्रेनिंग एंड द एक्सपीरियंस दैट विल बी द more than sufficient, and the government or the state government is satisfied from these duties performed by the drug inspector, that in that case that person only again appointed as a ड्रग इंस्पेक्टर फॉर नेक्स्ट 4 ईयर. मीन्स डेट के पहले 4 साल और उसके बाद 4 साल वही पर्सन एज अ ड्रग इंस्पेक्टर परफॉर्म कर सकता है. Powers of drug inspector. Within the local limits for which the person is appointed as an inspector, he is provided by power of inspect and take sample of any drug or cosmetic, search, enter and search, stop and search, give order in writing, examine and exercise. These are the some powers of drug inspector. First power is inspect. Either premises where drug or cosmetic is being manufactured or where any drug or cosmetic is being sold, stock or exhibited for sale or offered for sale or distributed, that can be inspected by drug inspector at any reasonable time. Means premises क्या इंस्पेक्ट करना है, तो प्रीमाइसिस का इंस्पेक्शन करना है. कौन से प्रीमाइसिस का? जहाँ पे ड्रग और कॉस्मेटिक या तो बनाई जाती है या फिर मैन्युफैक्चर की जाती है या फिर जहाँ पे उसको स्टोर करके रखा है, उसका एग्जीबिशन लगा है या फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है. ऐसी जगह पे ड्रग इंस्पेक्टर किसी भी वक्त जाके इंस्पेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट पावर इज टेक सैंपल ऑफ एनी ड्रग और कॉस्मेटिक. Which sample can be taken by drug inspector? Which is being manufactured or being sold or stock or offer for sale और exhibited और being distributed. कौन सा सैंपल ले सकते हैं? जिसका मैन्युफैक्चरिंग चल रहा है, जिसका सेलिंग चल रहा है, जिसको स्टोर करके रखा है या फिर सेल के लिए उसे ऑफर किया जा रहा है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है या फिर उसका एग्जीबिशन लगा है. ऐसा कोई भी सैंपल ड्रग इंस्पेक्टर किसी भी वक्त जाके ले सकते हैं. फिर किससे ले सकते हैं? तो फ्रॉम एनी पर्सन हु इज़ कन्वेइंग, डिलीवरिंग और प्रिपेयरिंग टू डिलीवर एनी ड्रग और कॉस्मेटिक टू अ परचेसर और कंसाइनी. कौन से पर्सन से ड्रग या कॉस्मेटिक का सैंपल ले सकते हैं? जो उसे लेके जा रहा है, जो किसी पर्सन को उसको डिलीवर कर रहा है या फिर डिलीवर करने के लिए उसको पैक कर रहा है. फ्रॉम दैट पर्सन ड्रग इंस्पेक्टर कैन टेक सैंपल ऑफ एनी ड्रग और कॉस्मेटिक अगेन एट एनी रीजनेबल टाइम. Next one, search any person is connection with the offense under this chapter at all reasonable time. Whenever it is seems that whenever drug inspector thinks that there should be any offense or you can say the breakage of rule of drug and cosmetic act can be done, in that case the drug inspector can search any person who is considered in connection with that offense at any reasonable time. Next one, enter and search. द ड्रग इंस्पेक्टर कैन एंटर एंड सर्च एट ऑल रीजनेबल टाइम. किसी भी वक्त जाके एंट्री कर सकते हैं, किसी भी टाइम सर्च कर सकते हैं. क्या सर्च कर सकते हैं? तो एनी प्लेस और प्रीमाइसेस इन विच, ऐसी कोई जगह या फिर बिल्डिंग जहाँ पे ही हैज़ रीज़न, ड्रग इंस्पेक्टर के पास रीज़न है बिलीव करने का कि वहाँ पे कोई तो भी ऑफेंस होने वाला है या फिर हो चुका है. ऑफेंस यानी बियॉन्ड द रूल और अगेंस्ट द रूल. ड्रग एंड कॉस्मेटिक ने जो भी रूल्स सेट किए हैं मैन्युफैक्चरिंग के, सेलिंग के या फिर डिस्ट्रीब्यूशन के ड्रग और कॉस्मेटिक के, उसके अगेंस्ट जाके कोई पर्सन काम कर रहे हैं, ऐसा अगर उसे बिलीव होता है तो ऐसी जगह पे जाके एंटर करने का और सर्च करने का पावर भी ड्रग इंस्पेक्टर के पास है. नेक्स्ट वन, स्टॉप एंड सर्च. पहले तो आया था एंटर एंड सर्च. किसी भी जगह पे या बिल्डिंग में जाके वो सर्च कर सकते हैं. स्टॉप एंड सर्च यानी किसी भी व्हीकल को वो कभी भी स्टॉप करवा सकते हैं और उसका सर्चिंग कर सकते हैं. ड्रग इंस्पेक्टर हैव पावर टू स्टॉप एंड सर्च एनी व्हीकल विच ही हैज़ रीज़न टू बिलीव. कौन सा व्हीकल? जहाँ पे उनके पास रीज़न है विश्वास करने के लिए या फिर ट्रस्ट करने के लिए कि जो ड्रग और कॉस्मेटिक के सैंपल कैरी कर रहे हैं एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ऑफेंस हैज़ बीन और हैज़ बीन कमिटेड. ऐसा कोई व्हीकल जो ड्रग और कॉस्मेटिक का अमाउंट या फिर प्रोडक्ट कैरी करके ले जा रहे हैं लेकिन वहाँ पे कोई ऑफेंस होने वाला है या फिर हो चुका है. मीन्स आइदर दैट व्हीकल कैरी द मिसब्रांडेड ड्रग्स, स्पूरियस ड्रग और अडल्ट्रेटेड वन. whenever the drug inspector think like that, then in that case he have to power to stop and search of that vehicle. Next power of drug inspector is give order in writing. किसे ऑर्डर देनी है? सो टू द पर्सन इन पोजेशन ऑफ ड्रग और कॉस्मेटिक इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड और इज़ बीइंग कमिटेड. जो पर्सन उस फर्म का ओनर या फिर मालिक है, जिस व्हीकल का ओनर है, तो उस पर्सन को
ड्रग इंस्पेक्टर एक रिटर्न में ऑर्डर दे सकते हैं जहाँ पे ऑफेंस या तो होने वाला था या फिर हो चुका है। किस चीज़ के ऑर्डर देंगे? तो नॉट टू बी डिस्पोज स्टॉक ऑफ सच ड्रग और कॉस्मेटिक फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए उस पर्सन को वहाँ पे जो अवेलेबल स्टॉक है या फिर उस व्हीकल में जो अवेलेबल स्टॉक है ड्रग और कॉस्मेटिक का, उसे डिस्पोज नहीं करना है, उसे डिस्ट्रॉय नहीं करना है, उसे छुपाना नहीं कहीं पे, और या फिर उसे वैनिश नहीं करना है। See, here it is given that for a specific period. Then, of what time period? Not exceeding 20 days or unless the defect may be removed. टाइम पीरियड कैसे दिया है? 20 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या फिर जब तक वो डिफेक्ट या फिर जो क्वेश्चन ड्रग इंस्पेक्टर ने अराइज किया है उसे क्लियर नहीं किया जाता या फिर उसे रिजॉल्व नहीं किया जाता, तब तक वट एवर द सैम्पल is available at that time that should be not dispose, not destroy or the vanish one, और उसे कहीं पे छुपाना भी नहीं है। अगेन इफ इट इज़ नॉट हैपन मीन्स अगर उन 20 दिनों में उस ओनर ने या उस पजेसर ने या फिर उस व्हीकल के ओनर ने जो ड्रग इंस्पेक्टर के क्वेश्चन थे उनको सॉल्व नहीं किया है, उनको सेटिस्फाई नहीं किया है, इन दैट केस अगेन द ड्रग इंस्पेक्टर कैन सील द टोटल स्टॉक by the order of magistrate. It is given into the power of Q order in writing. Next power is examine. Drug inspector have power to examine any record, register or document of any other material object found while exercising above powers and sees if he has reason to believe that is an evidence of the commission of an offence under the act. क्या एग्जामाइन कर सकते हैं? तो कौन सा भी रिकॉर्ड, रजिस्टर या डॉक्यूमेंट और एनी अदर मटेरियल जो भी इंस्पेक्शन के टाइम उसे मिलते हैं और उसे ऑफेंस रिलेटेड कंसीडर हो सकता है या फिर उसे बिलीव है कि ये जो ऑफेंस होने वाला था या फिर जो हो चुका है उसके अगेंस्ट हमें इसे एज अ प्रूफ यूज़ कर सकते हैं, तो दैट मटेरियल कैन बी टेकन बाय द ड्रग इंस्पेक्टर टू हिज साइड एंड इट इज़ ऑल्सो बाय द ऑर्डर. Next one, exercise. Drug inspector can exercise any other power for carrying out the purpose of this act. Again, drug inspector by their own wish can perform the extra powers also, whatever that will be in good faith of the Drug and Cosmetic Act and also in good faith of the public service. So it is total about the definition, qualification and powers of drug inspector. In case of power, we have see about the inspect, take sample, search, enter and search, stop and search, give order in writing, examine and exercise. Next point of this act, that is the duties of drug inspector and procedure performed by drug inspector and report to the government analyst, that will be seen in the next part of this video. So keep watching and happy learning.